मैडम क्या हो रहा है? प्रतिभा कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून मनोज सर। उनका मनीष का नमस्कार नमस्कार। मनीष का नमस्ते। मनीष जी, मनीष जी, अरे त्यांचा आवाज येत नाहीये हेमंत. मनीष जी हाँ सर। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो मग हे बंद करायचं की ते बंद करायचं? मनीष जी sir, your voice is not coming. Your voice is not audible now. Can you please check? Here it shows that your mic is connected, but your voice is not coming. नहीं, अभी भी नहीं सर आ रहा है। अब आवाज आ रही है हेमंत जी? हाँ, अब सर आ रही है। ठीक है। Sir, just a second. My boss, Dr. Ashok sir, want to say something. Just a second. गुड आफ्टरनून मनीष जी। गुड आफ्टरनून सर। नहीं, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है? हेमंत जी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पे आ रहा है। Just a second. Let me check. ठीक है। नहीं सेम ना। ए सफादी, ये टर्म्स एंड कंडीशन दिया नहीं है। अच्छा, एक मिनिट टाइम करा का स्पीकर चालू करा की बाबू। अरे Pairing mode. Waiting for device to connect. ये सर यहाँ से दो कंट्रोलिंग रहेगा तो एडमिट बिडमिट और बाद में ट्वेंटी बजते रहे। Pairing mode. Waiting for device to connect. Pairing mode. Waiting for device to connect. सर आवाज Yes, Manish ji. Hello. Sir. I think more echo is coming, sir. Yes. आई थिंक हेमंत जी आपके सेम ऑफिस में दो कंप्यूटर है ना, तो शायद आ रहा है। Just. तो बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। कोई और है जिनको नहीं सुनाई दे रहा तो प्लीज आप बताइए। हेलो मनीष जी, am I audible now? Yes, हेमंत जी, I can hear you. Yes. गुड आफ्टरनून मनीष जी। Good afternoon, sir. Nice to you to be here today, and I request our manager to introduce to our August gathering in this occasion, Mr. Hemant. Yes, thank you, sir. Good afternoon to all. I hope all of you are fine, and all of we know that if you want to be a successful entrepreneur in today's era, then your online presence should be prominent. So to be prominent on digital platform,
Today we are having expert who is having 14 years of experience in the field of digital marketing and who has worked with the most famous digital platform businesses like Shadi.com, 5paisa.com. So I welcome Mr. Manish Karia and I request him to guide our startups that how can they be prominent on digital platform. Manish ji, please. Sure, Hemant. Thank you so much. Thank you so much for the introduction. Thank you, Ashok ji, for the invitation to give this lecture. Hemant ji, do I need to continue in English or Hindi चाहिए हमें session? आप म्यूट पे हो. Sir, it will be better to continue in Hindi. हिंदी में Some करते of हैं. them Okay. are from rural part, so it will be better. No worries. No worries. धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए. So let us start with a brief introduction. मुझे जानना है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अभी जो नॉलेज है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, उनका बिजनेस क्या है. थोड़ा अगर शॉर्ट 30 सेकेंड 1 मिनट में आप लोग सब अपना इंट्रोडक्शन फटाफट देंगे तो मुझे हेल्प होगा. आगे का सेशन कैसे कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है उसके लिए. सो वन बाय वन Fast. हमको आप क्या करते हैं और Hello. हाँ, sir. Meet हो गया ना? नहीं. Myself is Dr. Ashok Kumar Bharimal. I'm basically an engineer. Now I am looking after this agribusiness incubation program in Sirkat, ICR Sirkat. I joined as a scientist here. So our work is scientific investigation as well as extension and incubation program. So this is my introduction. Hemant, Sir, myself Hemant Ladgaonkar. Basically, I am masters in textile technology. Now I am associated with this agri startup program. Hello. Now I'll call one by one name of startups. So in brief, you can give your introduction. so brief, ekdam brief, only one line. Yes, Vyomkesh. Mr. Vyomkesh. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. My name is Vyomkesh Vanbatte, and we work in hydroponics. We expertise in indoor hydroponics of Indian vegetables, and we plan to grow them and sell them locally in one particular city. So we need a lot of help regarding the digital marketing. So I'm very eager for this lecture. Next. Thank you. Zadav. Mr. Ganesh Zadav. yes sir. हाँ, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ब्रीफ में. सबके वीडियो ऑन करिए. हाँ नमस्कार सर. हेलो, मैं गणेश यादव एट हरणगांव तलपेट डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र. सर सुन पाए आप? What is your business idea? सर बिजनेस आइडिया है एग्रो टूरिज्म. Agrotourism. Okay. यस सर. In a tribal district of Nasik, he will start a agrotourism. Manish हाँ sir. यस. Okay. Okay. Next. Next is Vilas Rajole ji. Mr. Vilas Rajole. Next is Mr. Abhijit Malankar. Yeah, hello, Manish ji. It is nice to have you for this talk. So actually, we are into food and non-food selling business, and right now we are selling through channels like WhatsApp as well as like Amazon, etc. And also through some local hand-to-hand business. But we also want to get into more online as well as offline selling or direct selling. So that is what we are planning to do going ahead, like buying it directly from farmers and women SHGs and selling it directly to customers. So Yes. that is the plan. Okay, Abhijit ji, thank you. Next is Mr. Pratap Chauhan. Hello. Yes. Good afternoon, sir. Myself Pratap Singh Chauhan, and we are providing a digital support system for the farmers. Yes. Thank you, sir. Thank you. Next is Mr. Amit Patil, Apricitas.
Hello, sir. I'm Amit Patil. I'm mechanical engineer working in the automotive component business from 20 years, and we are using LinkedIn and Facebook to connect with our customers. Okay, thank you. Prachi Sable, madam. Yes, sir. Hello. Yes, madam. Hello, sir. I am Prachi Sabre. I am pursuing MSc Zoology degree in MD College, and our startup is related to the seaweed cultivation and its processing. Thank you, Prachi ji. Yes, Mr. sir. Anup, Mr. Anup Sonavne. Yes, Anup ji. Hello, sir. This is Dr. Anup Sonavne, and we are working on developing diagnostic kits that can be used in agri sector. Thank you, Anup ji. Next is Mr. Himanshu Dikshit. Good afternoon, sir. Myself Himanshu Dikshit, and our startup is Master Technology. We are engaged in the development of agriculture automation equipment by through robotics and all. Thank you. Yes, Karthik ji. Afternoon, sir. My name is Karthik Salvi, and I had done masters in soil science and agricultural chemistry. Basically, my startup is to forming vermicompost and vermiwash, and this session will be very useful for me as for marketing purpose, sir. Thank you, Manish ji. Rahul, Mr. Rahul Bilare. Myself, Rahul Bilare from Mahabaleshwar. We are working in the strawberry business, and our startup is regarding strawberry tissue culture plants. Okay, thank you. Sani sir. Very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Santosh Sahane. I did doctorate in entomology. My startup name is Forecast Agrotech Innovations Private Limited. We are working on the IoT-based biogas solutions for the production of organic fertilizers and green energy. Okay, thank you. Mahesh ji, Mr. Mahesh Borade. Myself Mahesh Borade. I am from Pune, Maharashtra. I have done my MBA Finance and Marketing. I have total 20 years experience in banking field, and right now last 5 years I am doing agricultural business, and right now we are doing a startup geranium essential oil that is used in perfume attar cosmetics. Thank you. Thank you, Mahesh ji. Mr. Nitin Khade. Namaste, everybody. Myself, Nitin Khade from Sangli, Maharashtra. I'm a food processing technologist and working of dehydration of fruits, vegetable, Ayurvedic, Vanaspati, and spices. Thank you. Okay. Mr. KK Anand. Anand Saab. Yeah, sir. I am Anand. I am actually a rubber technologist, basically chemical engineer. I am an incubator of HR Circuit. I am online. I am planning to sell the product, a newly developed product, rubber-based garden pots, indoor garden pots. Thank you, sir. Okay, thank you. Sarada Devi, madam. Hello, Sarada Devi, madam. Hello, Sarada Devi, madam. Hello. Okay. Mr. Sudarshan. Yes, Sudarshan ji. Please unmute your mic. Sudarshan, please unmute your mic. Good afternoon, sir. Yes. My firm Energy Sector is busy in manufacturing bird tires. Up till now, we are marketing by participating in the agriculture exhibitions, Krushi exhibitions, and platforms such as Facebook and Instagram. And in the future, we are trying to register on IndiaMart and other such websites for our products. Okay, thank you. Sarada Devi, madam. हरी जी. Yes. मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है. अच्छा, हाँ, मुझे जो जानना था, मैं एक्चुअली बोलने की कोशिश कर रहा था, शायद आवाज नहीं आ रहा था आपको.
मुझे जो जानना था कि कैसा टाइप का ऑडियंस है मुझे पता चल गया है। मेजॉरिटी बिजनेसेस जो हैं वो B2C बिजनेसेस है, मतलब जिनका प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं, और कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट B2B में करते हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यस राइट, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सो हम शुरू करते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। तो बाकी सबको आप म्यूट कर सकते हैं एंड हम कंटिन्यू करते हैं, और फिर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज नोट करके रखिए, और टुवर्ड्स द एंड हम लास्ट में 5-7 मिनट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके सर, ओके, ठीक है। सो तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको, राइट? यस यस, इट्स विजिबल सर। ओके, सो हमने इंट्रोडक्शन किया अभी एक दूसरे का। हेमंत जी ने बताया कि मैं 14 इयर्स से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है, और उसके बाद जो मैंने अपना पहला जॉब शुरू किया था वो डिजिटल मार्केटिंग था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं उसको, वहाँ से शुरू किया था हमने, और फिर वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गए, और धीरे धीरे फिर मैं ग्रो करते गया। मैंने खुद का बिजनेस भी चलाया डिजिटल मार्केटिंग में फॉर अबाउट 4-5 इयर्स। उसके बाद 8 साल मैंने Shaadi.com में काम किया है, और उसके बाद अभी मैं 5 पैसा कैपिटल में काम करता हूँ, जहाँ पे जो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो आप लोगों ने ICICI सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा। वैसे ही एक 5 पैसा कैपिटल भी एक कंपनी है जो ऑनलाइन यूज़र एक्विजिशन करता है, जिससे हम लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा सकें। राइट, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। हम सीधा डिजिटल मार्केटिंग के उसमें घुसते हैं। सो बिफोर वी गेट देयर, ये सेशन को कैसे मैंने प्रिपेयर किया है ये बताता हूँ। इसके मैंने 4 एस्पेक्ट्स डिसाइड किए थे। एक तो ये था कि बेनिफिट क्या है डिजिटल मार्केटिंग करने का, उसके बारे में हम थोड़ा टच बेस करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में। कहाँ हम क्या चीज़ें यूज़ करके हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट? सो कैसे कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। और फिर हम लास्ट में थोड़ा डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे कि आजकल मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हेमंत जी, इन केस अगर मेरा आवाज कहीं ब्रेक होता है तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज आई विल कीप कंटिन्यूइंग। ठीक है? थैंक यू। सो बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपका अभी जो मार्केटिंग का तरीका जो भी आप कर रहे हो, अगर वो डिजिटल नहीं है तो आपकी मार्केटिंग बहुत सीमित हो जाती है एक छोटे से लोकेशन के लिए, राइट? डिजिटल मार्केटिंग से ये फायदा होता है कि आपका रीच जो है वो बहुत बड़ा कर सकते हो अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, कहीं पे भी आप डिजिटल के माध्यम से लोगों को रीच आउट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज को सेल करने के लिए, राइट? सो सबसे बड़ा बेनिफिट वो है। दूसरा बेनिफिट है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो इसमें। सपोज आपके जो एंड कस्टमर्स हैं वो 25 साल की उम्र से 35 साल की उम्र के लोग हैं, राइट? तो फिर आपको जब डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आपको सपोज गूगल या फेसबुक पे आप ऐड करते हो तो वहां पे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि आपको 25 से 35 की साल की उम्र के लोगों के लिए ही आपको एड्स दिखानी है। वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो तो न्यूज़पेपर तो सारे टाइप के लोग पढ़ते हैं, उसमें से सारे लोग शायद आपके टारगेट ऑडियंस नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं। मेजरेबल रिजल्ट्स इस वजह से क्योंकि आपने अगर 100 रुपए खर्चा किया आपकी ऐड के पीछे, उसमें से आपको क्या रिटर्न मिला, कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने एक्शन लिया जो आपको चाहिए था, जो कि फॉर्म भरना है या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, कितने लोगों ने किया, वो आप मेजर कर सकते हो बहुत ही इजीली, जो आप ऑफलाइन वर्ल्ड में नहीं कर सकते, राइट? इसलिए ये मेजरेबल होता है। पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज आपका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अब अगली बार आपको उसको कनेक्ट करना है तो डिजिटल के माध्यम से आप उसको हाय मनीष
ऐसा करके आप सीधा उसको मैसेज कर सकते हो। उसको ऐसा लगता है अरे वाह ये ब्रांड जो है ये मेरे को जानता है और फिर इसने मेरे को रीच आउट किया, तो जरूर इसमें कुछ वैल्यू ऐड होगा जिससे मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगा, राइट। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि ये सबसे इजी माध्यम है अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करना। और हम सब जो भी बिजनेस करते हैं, आइदर वो B2B बिजनेस हो या B2C बिजनेस हो, सभी लोग कस्टमर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि अपना बिजनेस ग्रो हो और अपना काम आगे बढ़े, राइट। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इजी चीज है, इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग हमें करना चाहिए, राइट। आगे बढ़ता हूं मैं इस पे। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग वो होता है जो भी कम्युनिकेशन या जो भी हम अपना मैसेजिंग दूसरों को, अपने कस्टमर्स को पहुंचाने का कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होता है? वो इंटरनेट होता है, वो लैपटॉप होता है, वो व्हाट्सएप होता है, मोबाइल फोन होता है। सो जो भी चीज आप इंटरनेट को जोड़ के अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, वो सारी चीजों को हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं, राइट। इसमें कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो? तो बहुत सारे तरीके हैं कनेक्ट करने के। आप आपके प्रोडक्ट का वीडियो बनाइए, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप आपके प्रोडक्ट का कोई एनिमेशन बनाइए कि उसका प्रोसेस कैसे होता है। सपोज कोई मशीन बना रहा है तो मशीन कैसे काम करता है और कैसे फायदेमंद होगा एंड कस्टमर को या फिर दूसरे फार्मर्स को। सपोज फार्मर्स के लिए कुछ बना रहे हैं तो उनको कैसे फायदेमंद होगा, उसके लिए आप एनिमेशन बना सकते हैं, आप इमेजेस बना सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो शायद वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, जो आप सपोज आप जो भाषा में लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ नहीं आती, लेकिन इमेज देख के तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मेरे काम की चीज है। टेक्स्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट भी अलग अलग भाषा में। अब इतना वर्नैक्युलर का बूम चल रहा है इंडिया में कि ये किसी ने हैंड रेस किया था। अभी बोलना है आपको कि आप लास्ट तक रुक सकते हैं? नहीं सर, we will take question answers at last only. अच्छा, तो कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, राइट? सबको सुनाई दे रहा है, सब ठीक है, राइट? Yes. ओके, तो आई विल कंटिन्यू देन। तो अभी इंडिया में वर्नैक्युलर का वेव काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वर्नैक्युलर मतलब जो लोकल भाषाएं होती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो लिखित भाषाएं हैं, उसमें अब लोग टेक्स्ट करना, मैसेज करना शुरू कर दिए हैं। काफी सारे कीबोर्ड जो फोन पे आते हैं, अभी वर्नैक्युलर कीबोर्ड्स भी आने शुरू हो गए। गूगल ने कम से कम 15 से 20 लैंग्वेज में कीबोर्ड्स लॉन्च किए हैं। सो काफी प्रोग्रेस हो रहा है वर्नैक्युलर कम्युनिकेशन के ऊपर भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियो यूज करके भी आप आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं लोगों को। सो बहुत सारी तरीके हैं, अब बहुत सारे माध्यम खुल गए हैं जिससे आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि ट्रेडिशनल मीडियम्स में सिर्फ प्रिंट एक ऑप्शन होता था या वीडियो एक ऑप्शन होता था। वो भी वीडियो हर किसी के रीच में नहीं था। टेलीविजन पे अगर ऐड दिखानी है तो आपको प्रोडक्शन हाउस के पास जाना है। अब तो हर एक जन कोई वीडियो बना सकता है, बस अपना फोन चाहिए और उसको रिकॉर्ड करने का कैपेबिलिटी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजों को यूज करके जो आप कम्युनिकेशन करते हो अपने कस्टमर्स के साथ, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, जैसे कि पुराने जमाने में होता था, न्यूज़पेपर में एक फुल पेज ऐड आता था, हाफ पेज ऐड आता था। वो ही सेम कॉन्सेप्ट अभी ऑनलाइन में आ गया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको बैनर्स दिखते हैं, डिजिटल के बैनर्स दिखते हैं। या मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाओ या कोई भी अदर वेबसाइट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको बैनर्स दिखते हैं। तो बैनर्स एक माध्यम है एडवर्टाइज करने का। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है एडवर्टाइज करने का। किसी ने आई थिंक अभी बताया था कि वो लिंक्डइन के थ्रू लोगों को रीच आउट करते हैं। आई थिंक उनका बिजनेस ऐसा होगा कि वो B2B बिजनेस होगा, जहाँ पे वो लिंक्डइन में प्रोफेशन वाइज सर्च करके लोगों को टारगेट करते होंगे। सो दैट इज हाउ सोशल मीडिया हेल्प्स। अदरवाइज फेसबुक है, आजकल इंस्टाग्राम का बहुत बोलबाला चल रहा है, काफी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट। तो उस पे भी हम वीडियो, एनिमेशन, इमेज यूज करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं। सर्च इंजन आप सबको पता है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल पे आप कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको रिजल्ट्स देगा कि अच्छा ये आपने सर्च टाइप किया है, ये आपको लगता है आपको सर्च करना है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, राइट। तो सर्च इंजन के लिए हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन
ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब सबसे बड़ा चैनल है जहाँ पे लोग अपने शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है उन लोगों के लिए जिनके प्रोडक्ट्स जो है वो नॉर्मल लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आते, राइट। तो उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है एक, जिसमें हम लोग वीडियो, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स वगैरह इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बिकॉज वो शेयर करते हैं हम लोग उनके साथ, तो उनको पता चलता है कि अच्छा, जैसे किसी ने हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के बारे में बताया इधर, राइट। सो अब ये जरूरी नहीं हर किसी को पता होगा कि क्या है वो, तो उनके लिए वो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के वीडियोस जो अपने लैब में जो ग्रो करते हैं उसके वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। उसके बारे में आर्टिकल्स लिख सकते हैं कि उसका फायदा क्या है, उसका कैसे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपेयर में ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नेचुरल, फिर भी नेचुरल है विदाउट यूजिंग सॉइल। तो उसके बारे में वो कंटेंट मार्केटिंग से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? तो सबसे पहला तो वेबसाइट चाहिएगा। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, बिकॉज आज 70% ऑफ यूजर्स जो हैं वो पहला सर्च जो अपना करते हैं कोई भी चीज़ का, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करके करते हैं। हर कोई हमेशा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने नहीं बैठा होता कि वो यूज़ कर ले, लेकिन फ़ोन हमेशा उसके पास रहता है। सो मोबाइल कंपैटिबल वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है आज की एरा में। ऐप, अगर आपका बिजनेस ऐप रिलेटेड है, जैसे कि कोई जैसे किसी ने कहा कि वो फार्म प्रोडक्ट्स बना के उनको सेल करना है, वो अभी अमेजोन वगैरह पे ऑलरेडी करते हैं, लेकिन उनको अभी डायरेक्ट सेलिंग भी करना है, तो उसके लिए ऐप एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ऐप होना इसके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि एक बार किसी ने ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप उनको नोटिफिकेशंस भेज के उनको फिर से एंगेज कर सकते हो कि अच्छा, अब ये कमिंग संडे को हमारे स्टोर में ये ऑफर्स हैं, क्यों ना आप आपका ऑर्डर प्लेस करें, 10% ऑफ है, 20% ऑफ है। तो एक बार अगर किसी के फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लिया, जब तक वो बंदा अनइंस्टॉल नहीं करता है तब तक आप उसको रीच आउट कर सकते हो। सो ये वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट है, एक बार यूज़र को ऐप इंस्टॉल कराने का खर्चा लगता है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन उसके बाद वो कस्टमर को आप रिपीट कनेक्ट कर सकते हो उससे। मार्केट प्लेस प्रेजेंस, कुछ लोगों को पता है ऑलरेडी, मार्केट प्लेस में एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ मार्केट प्लेसेस होंगे जो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप देखते हैं कि सपोज आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना है, वहाँ पे सेलर्स का लिस्ट होता है कि ये सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं, राइट। सो इसको मार्केट प्लेस कहते हैं। अमेजोन एक ऐसा वेबसाइट है जो सेलर्स और बायर्स को जोड़ता है, राइट। तो इस तरीके की वेबसाइट्स को मार्केट प्लेस कहा जाता है। एंड लास्ट में जो मैंने इंट्रोडक्शन इसीलिए लिया था कि कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन में। तो B2B तरीका होता है सेलिंग का और B2C तरीका होता है। B2B में ऐसा होता है कि लोग कोई बिजनेस जो सपोज कोई फार्मर है, फार्मर को कुछ प्रोवाइड करें जिससे फार्मर अपना आउटपुट किसी कस्टमर को सेल करेगा, राइट। वर्सेस B2C ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली फिनिश्ड गुड्स उनके पास होते हैं और वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं, राइट। आई विल मूव अहेड, आगे बढ़ता हूं मैं। यस सर, यस। अब कैसे स्टार्ट करें? हमने समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, हमने समझा कि क्या होता है एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी स्टार्ट कैसे करें उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमको, राइट। सो सबसे पहला चीज़ है कि हमको अपने गोल्स डिफाइन करने चाहिए कि अब मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो मेरा गोल क्या है, मेरे को आउटकम क्या चाहिए उसमें से। कुछ लोग रहेंगे जिनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट के बारे में दुनिया में बताना है कि ये कुछ यूनिक प्रोडक्ट है जो मेरे पास है और आप लोग सब लोग जानिए। तो दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करना लोगों को। कुछ लोग होंगे जिनको मार्केट टेस्टिंग करना होगा कि अच्छा ठीक है, अगर मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया
तो कितने लोग उसको खरीदेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर ये प्राइस पे सेल करूंगा तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो अगर मैं 100 रुपए की जगह पे 150 रुपए पे बेचता हूँ तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मार्केट टेस्टिंग के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत काम आता है, बिकॉज वो छोटे बजट में 10,000 रुपया 15,000 रुपया खर्चा करके भी आपको मार्केट टेस्टिंग पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिकेगा तो किस प्राइस पॉइंट पे बिकेगा, लोग 150 रुपीज में खरीदना चाह रहे हैं या 100 रुपीज में खरीदना चाह रहे हैं, राइट। सो या तीसरा चीज है, आप वो फेज से गुजर चुके हैं, आपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस कर दिया है, आपने मार्केट टेस्टिंग भी कर दिया, अब आपको डायरेक्टली सेल करना है, तो आपको कितना वॉल्यूम सेल करना है, कौन से लोकेशन में, कौन से एरिया में सेल करना है, किन लोगों को शेयर करना है, राइट। सो उस तरीके से आपको आपके गोल्स डिफाइन करने चाहिए, बिकॉज जब भी आप गोल्स डिफाइन करोगे तभी ही आप उसका बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का यूज ले पाओगे कि कौन सा माध्यम मेरे को यूज करना है। जैसे अवेयरनेस होगा तो आपको वीडियो एज अ माध्यम ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि लोग आपका वीडियो देखेंगे और सुनेंगे उसके बारे में, तो समझेगा उनको क्या प्रोडक्ट है। जैसे मार्केट टेस्टिंग करना है तो फेसबुक वगैरह पे जाके या व्हाट्सएप वगैरह यूज करके क्लोज 100-200 लोगों का एक नेटवर्क में आपने एक SMS ईमेल कर दिया, कुछ कर दिया, जिससे आपको मार्केट टेस्ट मिलेगा कि लोग क्लिक करके मेरा प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। और जो एंड कस्टमर्स, मतलब जिन्होंने ये सब कर लिया, जिसको डायरेक्टली अभी सेलिंग ही करना है, वो फेसबुक, गूगल ऐसे सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यूज करके सीधा शॉपिंग एड्स यूज करके, वैसे सब फीचर्स यूज करके डायरेक्टली वो सेल करना शुरू कर सकते हैं और सेल देखना शुरू हो जाएगा, राइट। सो गोल डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप चैनल्स आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से माध्यम से मुझे करना है। मैं आगे बताऊंगा क्या चैनल्स हैं हाउ वाले सेशन में, हाउ वाली स्लाइड में। उसके बाद कंटेंट बनाना है आपको। कंटेंट का हमेशा उद्देश्य यही होना चाहिए कि क्यों कोई आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, वो एंगल से आपको कंटेंट बनाना चाहिए। क्या है आपका प्रोडक्ट, उसके बारे में बताना चाहिए, और कैसे वो आपसे खरीद सकते हैं उसके बारे में बताना चाहिए, राइट। सो हमेशा ये अप्रोच कोई भी सर्विसेज, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, B2B हो, B2C हो, कंटेंट जब बनाएंगे तब आपको ये व्हाई, व्हाट एंड हाउ, ये अप्रोच से जब आप बनाओगे तो होलिस्टिक अप्रोच से ही आपका पूरा का पूरा कंटेंट बनेगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि कस्टमर देख लेगा कि क्यों ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं कि ये कहाँ से लेना है, अगर आप हाउ के बारे में नहीं बात करोगे तो, राइट। अगर आप व्हाट के बारे में बात करोगे, प्रोडक्ट क्या है, तो वो बोलेगा कि अरे मेरे को इसकी जरूरत क्यों है, तो वो वाई के बारे में क्वेश्चन मार्क करेगा। इस वजह से आपको ये, जब भी कोई मैसेजिंग आप बाहर डालो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, इमेज हो, कोई भी चीज हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप वाई, व्हाट और हाउ हमेशा उसमें कैप्चर करने का कोशिश करें, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको हमेशा रेडी होना है इवॉल्व होने के लिए, ग्रो होने के लिए और पिवट होने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इवॉल्व माने अगर सपोज एक तरीके का प्रोडक्ट या एक तरीके का पैकेजिंग हमको कस्टमर से फीडबैक मिल रहा है कि ये इस तरह से अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई फूड, सपोज फ्रूट्स का कोई पैकेजिंग वाला सर्विस ऑफर किया कि मैं डायरेक्ट फार्मर से खरीदता हूँ और आपको बेचता हूँ, लेकिन वो पैकेजिंग में अगर कुछ फ्रूट्स खराब हो जाते हैं या डिलीवरी के टाइम कुछ खराब हो जाते हैं तो फीडबैक मिलता है हमको। वो फीडबैक से इवॉल्व होना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हमको कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है हमको, राइट। स्केल करने के लिए रेडी होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल माध्यम से, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हमारा जियोग्राफिक लिमिटेशन खत्म हो जाता है। हम सिर्फ अभी नासिक, सांगली, पुणे वो लोकेशन में बेचने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब डिजिटल में ऐड करेंगे तो हम बहुत सारे लोकेशंस पे ग्रो कर सकते हैं। और पिवट का मतलब ये होता है कि समझो कि हम 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अभी 10 में से डिमांड सिर्फ 4 की है, बाकी 6 की डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो हमें जल्दी से ये समझना चाहिए कि जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं 10 प्रोडक्ट्स के लिए, शायद वो 10 में से 6 प्रोडक्ट्स की जरूरत लोगों को इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन एड्स को बंद कर देना चाहिए, उन पे जो खर्चा हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, और बाकी 4
प्रोडक्ट्स जो हॉट सेलिंग है उस पर ज्यादा फोकस करके उसको ज्यादा ग्रो करना चाहिए, राइट? सो दैट इज हाउ वी शुड बी रेडी टू इवॉल्व, ग्रो एंड पिवट, राइट? अब हम हाउ के बारे में बात करते हैं, तो क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है जिससे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज जो मैंने कहा, आपको एक वेबसाइट बनाने की जरूरत है और एक ब्रांड होना जरूरी है, राइट? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, भले आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी एग्री इंडस्ट्री में जो भी मार्केट प्लेसेस होंगे, लेकिन हमारा बिजनेस हम किसी और बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। कल समझो वो मार्केट प्लेस बंद हो गया या उन्होंने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया, तो हम अपने कस्टमर्स को कैसे रीच आउट करेंगे? इस वजह से हमेशा अपना खुद का एक वेबसाइट, अपना खुद का एक ब्रांड आइडेंटिटी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला चीज हमको ये करना चाहिए कि वेबसाइट और ब्रांड होना जरूरी है, ठीक है? फिर जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहिए ताकि हमारा ब्रांड का अवेयरनेस हो। सोशल मीडिया माने फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये आज 80% जो भी जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसमें से 80 to 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये 3 चीजों में से कोई तो भी एक ऐप है, या तो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है या फिर तीनों है, राइट? सो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप आपका मैसेज इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डालोगे और किसी ने कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही कम चांसेस है उसके, राइट? इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। अब के टाइम में जो अपकमिंग ट्रेंड आया है वो है कंटेंट स्ट्रैटेजी यूज करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। आप सभी ने या तो जाना होगा या मैं बता देता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो होता है जो इंसान एक पर्टिकुलर स्पेस में अब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपने कभी ये देखा होगा, यूट्यूब पे आप सर्च करते होंगे कि सपोज सैमसंग का कोई एक फोन है, सैमसंग A51 सपोज, उस फोन का रिव्यूज मेरे को बताइए, या वो फोन कैसा है, या कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो वो यूट्यूब पे पहले सर्च करता है कि इसके रिव्यूज बताइए। ये जो लोग जो रिव्यूज डालते हैं उधर, वो जनरली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। कंपनीज इन लोगों को स्पेसिफिकली हायर करती हैं टू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स का इंडस्ट्री में या इंटरनेट पे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। जब भी ये कोई वीडियो डालते हैं या जब भी ये कोई मैसेज डालते हैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ने में आता है और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको उस इन्फ्लुएंसर पे भरोसा है। पहले भी उसने ऐसे वीडियोस डाले रहेंगे जिससे उनको फायदा हुआ रहेगा। सो अब हम अपनी स्पेस में, अभी एग्रीकल्चर स्पेस में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है बिकॉज मेरे लिए नया डोमेन है, बट आई एम श्योर डेफिनेटली इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट करने में हेल्प करेंगे, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा चीज है। ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए, न्यू कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये बहुत ही अच्छा टूल है ईमेल मार्केटिंग। हम अपने जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उसको ईमेल करके सेंड कर सकते हैं। हर चीज में हमें ये ध्यान रखना है कि कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमारा कंटेंट जो है वो व्हाई, व्हाट और हाउ के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए। जब भी ईमेल भी भेजें तो हमारा मैसेज उस तरीके से होना चाहिए कि लोग जब पढ़ें तो उसको समझ में आ जाए कि उसको क्यों जरूरत है, क्या है ये प्रोडक्ट और कैसे मिलेगा उसको ये प्रोडक्ट, राइट? फिर उसके बाद गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं। गूगल में 2 तरीके की एड्स होती हैं, एक सर्च एड्स होती हैं, कोई यूजर आके सर्च करता है कोई प्रोडक्ट के बारे में या कोई सर्विस के बारे में और गूगल उधर लिंक देता है बहुत सारी, उसमें से आप अगर ऐड करेंगे तो आपका लिंक वहां पे दिखेगा जिस पे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, राइट? गूगल में दूसरा तरीका भी होता है जिसको हम डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो मैंने पहले एग्जांपल दिया टाइम्स ऑफ इंडिया का, ऑनलाइन वर्जन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसपे आपको बैनर्स दिखते हैं, इमेजेस के बैनर्स दिखते हैं या फिर जिफ दिखती है या वीडियोस दिखते हैं, राइट? तो उसको एनेबल करने के लिए भी गूगल आपको हेल्प कर सकता है। तो गूगल एड्स करके एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं।
फेसबुक एक अच्छा माध्यम है। फेसबुक जैसे मैंने कहा, फेसबुक का रीच जो है वो ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ इंटरनेट पॉपुलेशन के पास है। इस वजह से फेसबुक काफ़ी पॉपुलर टूल बन जाता है। फेसबुक में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं आपको टारगेट करने के, जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन में ही सिर्फ टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल, मुंबई में मैं बैठा हूँ और मुझे मुंबई के लोगों को ही सिर्फ फिलहाल अभी प्रोडक्ट्स बेचने का कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, राइट? तो मैं सिर्फ ऐड भी मुंबई में ही दिखा सकता हूँ। वो ऑप्शन भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन फेसबुक देता है। लोकेशन टारगेटिंग करने का ऑप्शन देता है। फेसबुक लैंग्वेज टारगेटिंग करने का ऑप्शन भी देता है। लैंग्वेज टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी को आपको सिर्फ हिंदी में एड्स दिखानी है, किसी को सिर्फ आपको मराठी में एड्स दिखानी है। सपोज आपके कस्टमर्स जो हैं वो थोड़े रूरल में रहते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता, तो आप उनको रीजनल लैंग्वेज में भी टारगेट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज फेसबुक प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स गूगल भी करता है, लेकिन गूगल का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग नहीं है जितना फेसबुक का एल्गोरिदम स्ट्रांग है, राइट? तो ऐसे काफी सारे कैपेबिलिटीज हैं जो फेसबुक के पास हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। लास्ट में ये 3 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है रीटारगेटिंग कैंपेन्स। रीटारगेटिंग कैंपेन्स का मतलब ये होता है कि एक बार अगर किसी ने आपका वेबसाइट विजिट कर लिया, ठीक है, सो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इंटरनेट पे वो इंसान को गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो टैग कर देते हैं। फिर जहाँ पे भी वो बंदा इंटरनेट पे जाएगा, वहां पे वो आपके एड्स देखेगा। वो गूगल और फेसबुक का काम होगा। आपने कभी ये देखा होगा, राइट? आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फोन के बारे में सर्च किया आपने इंटरनेट पे, और तभी आपने खरीदा नहीं। या अमेज़न का एग्जांपल लेते हैं। अमेज़न पे आपने सर्च किया आईफोन, और आपने सब ब्राउज किया, देखा, लेकिन तभी आपने कुछ खरीदा नहीं, कुछ नहीं किया, राइट? बिकॉज आपने एक्शन नहीं लिया, अमेज़न ने आपको टैग कर लिया है। फिर आप कहीं पे भी इंटरनेट पे जाओ, आप कोई दवाई की वेबसाइट पे जाओ, आप कोई न्यूज़ की वेबसाइट पे जाओ, आप कोई इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे रीटारगेट करके वो आपको फिर से वो ही प्रोडक्ट दिखाते रहेंगे, ताकि वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए कि अच्छा, मैंने ये देखा था प्रोडक्ट, अब मुझे खरीदना है ये। और ऐसा टाइम आएगा जब 2-3 बार ऐड देखने के बाद आपको मन हो जाएगा कि अच्छा चलो अब खरीद ही लेते हैं, बहुत बार ये एड्स आ रही है, मेरे को वैसे भी खरीदना था, चलो खरीद लेते हैं, राइट? तो रीटारगेटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। रेफरल मार्केटिंग, ये अगर आपका कस्टमर बेस ऑलरेडी बड़ा है तो आप रेफरल मार्केटिंग कर सकते हो। आप आपके कस्टमर्स को बोल सकते हो कि अगर आप नए कस्टमर्स को लाओगे तो हम आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देंगे आप जब प्रोडक्ट खरीदोगे या आप जब सर्विसेज खरीदोगे, राइट? तो इसको रेफरल मार्केटिंग कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसईओ में एकदम हेवीली इन्वेस्ट करना चाहिए। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपको 2 तरीके की एड्स दिखती है। एक जो होती है, जो एड होती है, एडी एड लिखा हुआ होता है उसमें, और एक जो होता है वो फ्री लिंक्स होते हैं, राइट? बेनिफिट वो फ्री लिंक्स में आने में सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको 0 रुपया खर्चा करके आपके साइट पे क्लिक्स मिलेंगे, राइट? तो this is how you should consider doing some strategies on digital. Some of the do's and don'ts, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा जब भी आप आपका मार्केटिंग का आइडिया सोचें, जो आप गोल सेटिंग करने वाले थे शुरू में, जो मैंने बताया था आपको, कस्टमर फोकस रख के गोल सेटिंग कीजिए, ना कि ये फोकस रख के कि मुझे इतने प्रोडक्ट बेचने हैं, इस वजह से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो भी एक गोल हो सकता है, लेकिन आपका पहला शुरुआत जो होता है वो कस्टमर फोकस होना चाहिए कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए और क्या मैं वो सर्विसेज वो तरीके से दे पाऊंगा जो मेरा कस्टमर मांग रहा है। सेकेंड थिंग है कि आपको आपके ब्रांड के प्रति लोगों को ट्रस्ट बिल्ड कराना है, राइट? अगर आपने आपकी वेबसाइट पे प्रॉमिस किया है कि मैं 5 दिन में आपका ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा, और अगर आप फॉर सम रीजन नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, आपके एंड से प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए चौथे दिन पे कि मेरा प्रोडक्ट अभी और 3 दिन डिले हो जाएगा, फॉर वट एवर रीजन इट मे बी, लॉजिस्टिक इशू है या अवेलेबिलिटी इशू है, जो भी है। उससे क्या होगा ना, वो इंसान के माइंड में ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो 10 लोगों को और भी रेकमेंड करेगा कि हाँ, ये जो ब्रांड है ना, ये कस्टमर के बारे में सोचता है। और बिकॉज अभी इंटरनेट पे आप सेल कर रहे हो,
कुछ भी नेगेटिव रिव्यू बहुत ही जल्दी फैलता है इंटरनेट पे। आपने देखा होगा कोई भी नेगेटिव न्यूज होगी वो भी बहुत जल्दी फैलती है, बिकॉज अभी व्हाट्सएप पे क्या है, लोगों को फ्री है, फॉरवर्ड करना है खाली, और क्या करना है, राइट। थर्ड थिंग इज हमेशा आरओआई के बारे में सोचिए। आप खर्चा कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, पेड एडवर्टाइजिंग पे, तो ये सोचिए कि मेरा 100 रुपया डालने के बाद क्या मुझे उसमें से 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, 100 रुपया पूरा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। तो हमेशा इस चीजों पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। सो आई थिंक मेरे एंड से मुझे आज इतना ही इंफॉर्मेशन शेयर करना था। लास्ट लाइन में एक दिखाना चाहूंगा जो मिस्टर जेफ बेजोस ने जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उन्होंने बताया है कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है आज के ज़माने में, तो आप जल्द ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे, राइट। और ये ट्रू है, हम देख रहे हैं हमारे पास हमको पैंडेमिक ने भी यही सिखाया कि अगर इंटरनेट पे आप हो तो आपका प्रोडक्ट बिकना पॉसिबिलिटी है। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग, लोगों को ऑनलाइन पेमेंट, उसके बारे में हिचक नहीं हो रही है अभी करने में, काफ़ी लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने का स्कोप वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट, इन दिस टुडेज वर्ल्ड। सो आई लीव यू विद दिस थॉट एंड अब नेक्स्ट 5 मिनट हम क्वेश्चन एंड आंसर पे शेयर कर सकते हैं। Yes, thank you, Manish ji. Now, all startups, we are open for question and answers. If you are having any queries, you can raise, please. Yeah, thank you, Manish ji. This was very insightful. I had a question regarding if you have ever used the gamification strategy with customers and what results you have got from that. So, ये हम काफ़ी यूज़ करते थे अपने शादी.com में, बट ये न्यू कस्टमर को अक्वायर करने के लिए नहीं करते थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए करते थे, कुछ एक्शन लेने के लिए करते थे। तो हमने शादी में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने देखा था कि अभी शादी.com जो प्लेटफॉर्म है उसमें लड़के और लड़कियों को मैच करने का प्लेटफॉर्म है, राइट। लेकिन क्योंकि और ये 2019 की बात कर रहा हूँ, 2018-19 की, जब फीमेल यूजर्स जो प्लेटफॉर्म पे होती थी ना, वो थोड़े शाय होते थे सामने से मेल यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो हमने देखा था कि फीमेल यूजर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लेती है लेकिन वो कुछ एक्टिविटी ज्यादा नहीं करती। उस वजह से हमने गेमिफिकेशन वाला चीज यूज किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि अगर आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे वो टाइम पे, वो एक्टिविटीज अगर आप प्लेटफॉर्म पे करते हो रेगुलरली फॉर नेक्स्ट 5 डेज और 7 डेज, हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप पे इतना डिस्काउंट देंगे, राइट। लेकिन इसमें एक कैवेट है, ये जरूर वर्क करता है इंस्टेंट आउटपुट लाने के लिए, लेकिन इससे क्या होता है, वो कस्टमर को थोड़ा हैबिट हो जाता है कि मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा तो ही मैं एक्शन लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता, राइट। तो उस वजह से जब हमने फिर उस गेमिफिकेशन को हटा दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो फिर हमने वापस ये देखा कि लोगों का एंगेजमेंट कम हो गया, राइट। तो वो जो हैबिट होता है ना, हमको भी हैबिट होता है कि ऑफर मिल रहा है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं, जब ऑफर नहीं मिल रहा तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं उस चीज से। तो थोड़ा सोच के करना है, बहुत फ्रीक्वेंटली गेमिफिकेशन को नहीं यूज करना है। I think the same strategy ऑफलाइन भी काफी यूज होता है, यानी अभी हम लोग शॉप्स के पास ज्यादा सेलिंग करने का ट्राई करते हैं, तो फिर यू गिव समथिंग टू देम, ऐसा। So it is used, I think, offline भी, और then but we have to take care कि कैसे उसको मॉडरेशन में यूज करना है, इज ऑल आई वुड से। उसको कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं बना देना है। मे बी साल में एक बार ऐसा कोई हफ्ता या महीना आएगा जब ये ऑफर आप रिलीज करोगे फॉर गेमिफिकेशन, बट बाकी के 11 महीने आप शायद नॉर्मल प्रोसेस से ही कंटिन्यू करोगे, अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैसा है जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो मंथ ऑन मंथ ये गेमिफिकेशन करना, राइट। इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, और एक सवाल था कि अभी ये ऑनलाइन स्ट्रेटेजी के साथ साथ ऑफलाइन एंगेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, यानी बिकॉज ऑनलाइन तो सब लोग रहते हैं, बट देन if you also have a offline presence, yani to interact with one-on-one with the customers, so how it can be helpful?
या सो जैसे मैंने एक स्लाइड में बताया कि ब्रांड बिल्डिंग जो है, वेबसाइट एंड ब्रांड बनाना जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो ब्रांड बिल्डिंग जो है वो ज्यादातर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से होगा। ऑफलाइन में सिर्फ एक ही लिमिटेशन आ जाता है, अगर आप नॉर्मल होर्डिंग्स वगैरह की बात कर रहे हो या फिर स्टोर्स जो आप जहाँ पे केटर कर रहे हो वहाँ पे बैनर्स वगैरह की बात कर रहे हो, तो वो लिमिट हो जाता है आपका एरिया, राइट। लेकिन अगर टीवी एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हो, आई गेस सारे स्टार्टअप्स है तो ज्यादा टीवी पे तो फिलहाल मे भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा गेस है। तो उस डायरेक्शन में मैं जा नहीं रहा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग जो ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हो, ज्यादातर न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में एड्स डालना या फिर बैनर्स वगैरह शॉप्स पे लगाना, वैसे कुछ की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, नहीं मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑफलाइन स्ट्रेटेजी हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस को बूस्ट कर सकती है क्या? डेफिनेटली कर सकती है, यस कर सकती है, क्योंकि जितना कस्टमर के माइंड में रीइंफोर्समेंट करेंगे, मार्केटिंग का काम ही वो है। जितना रीइंफोर्समेंट होगा उतना आपका ब्रांड रिकलेक्ट होगा, और जितना आपका ब्रांड रिकलेक्ट होगा वो यूजर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो रिकलेक्ट करेगा उसको। करेक्ट, यानी डेफिनेटली ऑफलाइन स्ट्रेटेजी से हम लोग ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। यस ओके, गुड, थैंक यू। तो आपने देखा होगा शादी.com की भी एड्स टीवी पे भी आती हैं, फेसबुक पे भी आती हैं, गूगल पे भी आती है, सब जगह पे आती है, राइट। तो ऐसा होता है कि लोग टीवी पे ऐड देख के जाके सर्च करते हैं गूगल पे और उसको वेबसाइट मिल जाती है। ऐसा होता है कि वो लोग फेसबुक पे ऐड देखते हैं लेकिन वो कुछ और करते रहते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन फिर जब टीवी पे ऐड आती है तो उनको सडनली याद आता है, अच्छा मैंने तो फेसबुक पे ये 10% ऑफ वाला ऐड देखा था, मुझे रजिस्टर भी करना था, मैं कर लेता हूँ, राइट। सो दोनों ही टाइप ऑफ मार्केटिंग हैंड इन हैंड जाते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनको शुरू में थोड़ा कम बजट होता है और उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है, सीखना होता है कि मेरा प्रोडक्ट का वायबिलिटी क्या है वगैरह, उस केस में डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते। आप गूगल और फेसबुक पे रजिस्टर करो, आप अपना ऐड शुरू करो और नेक्स्ट दिन से आपको विजिटर्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो उससे आप जज कर सकते हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना। दैट्स व्हाई इट इज इजी टू स्टार्ट। Yeah, true. Thank you. Yeah, thanks. Vyomkesh, I think you were eager for this lecture, so if you are having some queries, you can. I was eager, but I don't have questions right now, sir. If I can, I'll ask him later. Okay. या इसमें तो दो चीजें हुई रहेंगी, या कुछ नहीं समझा या सब कुछ समझ गया। I think I understood fair bit, but I'll let you know later. चलो, गुड, थैंक यू। फर्स्टली आपने कहा कि ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टार्टअप्स के लिए। यस। जैसे हमारा एक स्टार्टअप है, न्यू है, तो ब्रांडिंग के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, सो ब्रांड बिल्ड करना जरूरी है, वो मैं कह रहा था। स्टार्टअप का तो कोई ब्रांड होगा नहीं, बिकॉज वो आज की डेट में किसी को जानते नहीं। बट बिल्ड करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आप आपके वेबसाइट सबसे पहले बनाइए, फिर उसको आप अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केट कीजिए। जैसे फेसबुक वगैरह पे आप वीडियो बना के या इमेजेस बना के या टेक्स्ट लिख के या आर्टिकल्स, जैसे मैंने कहा था, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके, जैसे मैंने एक पॉइंट कहा था, वो सब चीजें यूज करके आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई कोई एग्रो टूरिज्म कर रहा था, राइट। तो वो बता सकते हैं कि नासिक के एरिया में मैं एग्रो टूरिज्म कर रहा हूँ। वैसे धीरे धीरे उनका ब्रांड बनेगा, और जैसे जैसे कस्टमर्स कुछ शुरुआत में जाएंगे, वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस फिर दूसरे लोगों से शेयर करेंगे, राइट। तो वो खुद भी एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं दूसरों को अवेयरनेस क्रिएट करना, एंड दैट्स हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी का ब्रांड बिल्ड होगा। ओके, थैंक यू सर। Yes, Anand Saab, Mr. KK Anand. Sir, I am here. Yes, I think you are having Thank you for that. in offline market, and Actually, you can go for online marketing, so you can ask a question if you are having any doubt. sir, actually, I am having a lot of questions about this, but I can't finish all these things because I am actually doing a product which my customers may buy in an impulse. See, this is an impulse purchase. My product, as you said, as I earlier said, this is a garden pot. It is a substitute for plastic rubber pot. It is a rubber-based indoor garden pot. It is flexible. We have made a brand name also, FlexiPot.
and we are now doing it in offline. See, okay, in a layman's view, to begin with, and I am giving some ads in Facebook, Instagram, and it is not actually to begin with, to boost up this. In a layman's view, what kind of activity I have to initiate? So, Mr. Anand, first things first, you will have to start creating awareness, and you will have to start showing value to your customers, how your product is more valuable than something that they are already using, right? So वो आपको अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचना पड़ेगा कि सपोज अगर आप आप खुद ही अगर आप आपके प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हैं तो आप एक वीडियो बना के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं कि जो मैंने कहा कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ, क्यों किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट का जरूरत है, राइट? क्या है आपका प्रोडक्ट और कहाँ से वो ले सकता है, उस बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप देना शुरू करेंगे लोगों को, तो उससे क्या होगा कि अवेयरनेस क्रिएट होगा, और जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट होगा उससे लोग सोचेंगे कि अच्छा ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो लेट मी काइंड ऑफ बाय दिस। तो आपका पहला जर्नी जो है, इन केस अगर आपका प्रोडक्ट इतना पॉपुलर नहीं है, जैसे आपने कहा थोड़ा नीश प्रोडक्ट है, राइट, ऑल्टरनेटिव टू सम प्रोडक्ट दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, वो वैसा प्रोडक्ट है, तो आपको इसका नीड लोगों के माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा पहले कि हाँ मुझे ये जरूरत है, जो मैं यूज कर रहा हूँ उससे कुछ बेटर है, ये कम कॉस्ट में या सेम कॉस्ट में है, लेकिन इसका शेल्फ लाइफ बेटर है या इसका ड्यूरेबिलिटी बेटर है। वो अवेयरनेस पहले आप क्रिएट करोगे, उसके बाद ही तो उसका डिमांड क्रिएट होगा, राइट? One more thing, आपको उस एंगल से सोचना चाहिए मेरे ख्याल। One more question, sir. Can I hire the service of any such professionals? Yes. Paying to. Yes, आप कर सकते हैं, लेकिन जो डूज एंड डोंट स्लाइड में लास्ट लाइन मैंने लिखा था कि फोकस ऑन ROI, वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी को हायर करना है। अभी क्या है ना, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन शायद वो आउटकम्स वैसे नहीं आते हैं जो आउटकम्स चाहिए हमें। तो आपको किसी को छोटा सा काइंड ऑफ पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को हायर करना चाहिए कि अच्छा आप एजेंसी को हायर कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप मेरे को इतना बिजनेस लाके दो, ये स्ट्रैटेजी करके मैं आपको 10% कमीशन दूंगा, 20% कमीशन दूंगा, व्हाटएवर फ्रॉम द सेल्स दैट हैपन। जब कोई एजेंसी आपके साथ इस मॉडल पे काम करना चाहता है, तभी आप समझना कि वो ट्रूली आपके बेनिफिट के लिए काम करेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके जाएंगे, लेकिन सारे शायद आपके बिजनेस के लिए काम नहीं आएंगे। Can you suggest any such, since you are in this field, do we have any such contacts? Then it would be beneficial for me to. I can do that. आप हेमंत जी से मेरा ईमेल ले सकते हैं और आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, और फिर we can kind of communicate on the email for it. Yeah, sure. I will contact through Hemant sir. सर एक ऐड करना चाहूंगी, आनंद सर। Yes sir. Yes madam. या आनंद सर, आप लोकल केबल नेटवर्क होता है ना, वहां पे आप अगर वीडियो भेज सकते हो या एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट ऑफ हाफ मिनट टू मिनट, हाफ टू 2 मिनट्स का, तो केबल नेटवर्क से भी अभी भी बहुत सारे घरों में केबल नेटवर्क चलता है, तो वहां पे ये सब एडवर्टाइजमेंट, वहां पे सब ये मार्केटिंग चलती है। FM चैनल, लोकल FM चैनल, जहाँ पे जैसे अभी 6 जून को इन्वायरमेंट डे है, आप उस दिन के लिए अगर आप आपके प्रोडक्ट्स इज अल्टरनेटिव टू ये है ना कन्वेंशनल गार्डन पॉट्स एंड ऑल, तो उसका इन्वायरमेंट का थोड़ा सा आप उसका बेनिफिट या उसके ऊपर उसका यूटिलिटी बता के आप वैसे क्या कहते हैं, आप अपने प्रोपोगंडा कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स का। हाँ मैडम, thank you very much. That's what I am planning. I have not yet launched my product in Mumbai. So I wanted to do all these activities in Mumbai now as soon as possible. Even the local ये जो bloggers है ना, bloggers on YouTube, yes, ये बहुत important, ये ऐसा important, आप उनको जरा कांटेक्ट करिए, आपके एरिया से भी, आपके केरला में भी। That is influencer marketing. Yes sir, yes sir. हेमंत जी, एक आखिरी क्वेश्चन ले सकता हूँ? आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे को दूसरा मीटिंग है, सॉरी। मूर्ति सर, any question?
मेरे को अमित जी का Just one एड्रेस दिख रहा है। clarification, because basically we can see that in digital marketing, most of the products come with a review, and some of them seems to be self-sponsored. Right. So how do we identify or understand which sort of review is genuine? Because some of the products which are being purchased by very few people, but getting 5 stars. So Right. how we see that we don't get deceived by those things and get a right product? That's a very tough thing to do on the internet. But I would say अगर आपने Zomato यूज किया होगा, Zomato का एग्जांपल देता हूँ मैं, बिकॉज मैंने काफी सारे ऐसे रिव्यूज को पकड़ा है। Zomato में अगर आप कोई रेस्टोरेंट के रिव्यूज पढ़ते हैं, उसमें आपको जिन लोगों ने रिव्यू किया उनके फॉलोअर्स का काउंट भी दिखता है, राइट? तो अब जैसे नॉर्मल यूजर्स जो होते हैं उनके इतने सारे फॉलोअर्स नहीं होते, जैसे मेरा आपका फॉलोअर्स कितने होंगे, 10 20 50, उससे ज्यादा कितने फॉलोअर्स होंगे, राइट? बट इन इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं वो 500,000 वैसे फॉलोअर्स होते हैं। तो हम इन लोगों के फॉलोअर्स का लिस्ट देख के एक बार समझ सकते हैं कि बिकॉज इनको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये मोस्ट लाइकली इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑन द इंटरनेट, जो किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट ने हायर किया है उनको टू राइट अ गुड रिव्यू फॉर देम, राइट? एक तरीका जोमेटो पे ये है। आई थिंक अमेजोन वगैरह पे वो फॉलोअर्स का नाम वगैरह नहीं पता था, बट नेचुरल होता है अगर कोई अनब्रांडेड प्रोडक्ट है और उसको बहुत सारे 5 स्टार रेटिंग्स वगैरह मिल रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वो शायद जेन्युइन नहीं होंगे, बिकॉज कोई प्रोडक्ट इतना परफेक्ट बनता नहीं कि उसको 90-95% वोट जो मिलेंगे वो 5 स्टार ही मिलेंगे, राइट? So, but otherwise, to answer your question, it is difficult on the internet to do that. Yeah, everything has their pros and cons. So this is one of the cons that is. Yes. Okay. I think अमित जी को एक चांस देते हैं और फिर मे बी हम सेशन को एंड करते हैं। Yes, अमित जी। सर हमने कुछ डिजिटल मार्केटिंग किया था, उसमें बहुत सारा गार्बेज डेटा आता है या गार्बेज लीड्स आता है, तो डेटा साइंस का इसमें कुछ रोल हो सकता है कि उसको ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं? हाँ, सो डेटा साइंस का तो रोल सर बाद में आता है जब बहुत ज़्यादा हैवी डेटा आपके पास आ जाता है। उसके पहले बहुत सारा यूज़र सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। शुरू में बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, हमने भी किए हैं, ऐसे नहीं है, जो ऐड शुरू कर देते हैं लेकिन कोई टारगेटिंग ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल वापस मैं shaadi.com का देता हूँ, जहाँ पे हमारा इंसाइट्स ये कहता था कि 24 साल से लेके 35 साल की उम्र के लड़के लड़कियां कोई भी हो, वो शादी के लिए रेडी हैं। लेकिन जब हमने एड्स करनी शुरू की, हमको ये रियलाइज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि 24 से लेके 28 साल की उम्र के लोग तो सिर्फ एक्सप्लोर करने आते हैं, क्योंकि वो अपने ऑफलाइन नेटवर्क में भी मैच मेकिंग करते रहते हैं। जैसे किसी मामा चाचा उन लोगों को भी बता के रखा है कि मुझे शादी करनी है, और वो भी रिश्ते भेजते रहते हैं। तो जब वो shaadi.com प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, वो कभी आके प्रीमियम मेंबरशिप नहीं खरीदते, वो कभी आके कोई एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए वो नहीं करते। तो ये इनसाइट हमारे लिए भी ये गार्बेज लीड्स थे सारे, राइट? अ सॉर्ट ऑफ जो कभी फ्यूचर में हमारे लिए प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं 4 साल के बाद। अगर कोई 24 साल का तो 28 साल की उम्र में प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। सो ये हमको जैसे जैसे पता चलते गया, हमने अपने एड्स जो है उसको रिफाइन करके वही उम्र के लोगों को दिखाने का कोशिश किया, जो हमारा टीजी में जो हमारे लिए रेवेन्यू बना के देता है, जो हमारे लिए वैल्यू जनरेट करके देता है, राइट? सो सबसे बड़ा चीज जो कोई भी एडवर्टाइजिंग शुरू करने के वक्त आपको सोचना है, वो मैं जैसे कह रहा था, गोल सेटिंग है। आपको आपके एड दिखाने से क्या अचीव करना है। सिर्फ आपका अचीवमेंट ये है कि बहुत सारी लीड्स जमा करनी है, भले वो कैसी भी क्वालिटी की हो, तो वो ऑब्जेक्टिव से कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि नहीं, ये जो लीड जमा करेंगे उसमें से 30% ऐसे कस्टमर्स होने चाहिए जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो फिर आप आपके कस्टमर के बारे में सोचोगे। कस्टमर के बारे में सोचोगे तो आप आपके एड्स को सेगमेंटेशन करोगे तो आप सही यूजर्स को सही एड दिखाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जंक लीड्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? थोड़ा शुरू में ट्रायल एंड एरर होगा, बट आई थिंक इवेंचुअली विल गेट टू द राइट प्लेस।
मनीष जी, एक छोटा सा सवाल था कि हम लोग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम लोग ऑनलाइन कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रहे हैं हाँ. और किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, समझो ब्रांड किसी और का डाल रहे हैं सेलिंग के लिए, हाँ. तो एक छोटा सा टिप क्या रहेगा कि व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस वी शुड फॉलो कि वी शुड नॉट ओवर कमिट टू द कस्टमर्स? सो सी, अगर आप किसी का ब्रांड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज तो डिस्क्लेमर लिखना है कि ये ट्रेडमार्क और ये कॉपीराइट किसी और ब्रांड का है और हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो रीसेल का सर्विस है या ऐसा कुछ सर्विस है, वो क्लियरली मेंशन करना है। और दूसरा चीज है कि कभी भी कस्टमर का भरोसा टूटे नहीं वैसा ही कमिटमेंट करना है, बिकॉज कस्टमर अक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और उसको लूज करना बहुत ही ईजी होता है, राइट? इस वजह से हमको हमेशा ये सोचना है कि इसका भरोसा हम ना तोड़े, उतना ही कमिट करें। सपोज हम अगर प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं एक दिन में, तो इनिशियल डेज में जब तक आपका सप्लाई चेन प्रॉपरली सेट नहीं हो जाता, आपने टेस्ट नहीं कर लिया, तब तक आप उसको ओवर कमिट मत कीजिए। आप उसको कह सकते हैं कि मैं 2 या 3 दिन में डिलीवर करूंगा उसको, और फिर भले वो उसको सरप्राइज मिलेगा, अच्छा एक दिन में मेरा प्रोडक्ट आ गया, वो सरप्राइज हमेशा ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू समथिंग आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, राइट? आई एम सॉरी हेमंत जी, वी विल हैव टू स्टॉप, मेरा दूसरा मीटिंग है अभी, तो मैं और क्वेश्चंस फिलहाल नहीं ले पाऊंगा। बट आप इन लोगों से मेरा ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं, आपके पास है तो, इन केस अगर इनको क्वेश्चंस या आप इनके क्वेश्चंस कोलेक्ट करके मुझे भेज सकते हैं। Sure, sir. Sure. Sir, you will have 1 minute only for vote of thanks. Or yes, please. Go ahead. चलो कर yes. लेते हैं। Now I request Dr. Sundar Murthy sir for small vote of thanks. Yes. Thank you. On behalf of Sircot RAB, I wish to extend our sincere thanks to Manish ji, because you, despite your busy schedule, you were able to spare the time, and it will be good that we will be going together in our journey, and you will be of help to us in the future also. I also thank all the startups who could come for the meeting and get benefited. So thank you one and all. Thank you. Thank you so much, Sundar ji, and thank you everyone for listening to me. थोड़ा किसी लोगों के लिए शायद बेसिक होगा, but given the audience that we had, I had to cover everything in this fashion. But I'm always open to questions, and I'll be happy to kind of help you in whatever way I can. Yes. So thank you so much everyone, and thank you so much the Sircot team to kind of invite me and give me this opportunity to present some knowledge that I have. Thank you. Whenever you get time, sir, you can visit our facility. You are nearby. I will definitely. Thank you so much. Thank you, Manish ji. Thank you and all the best, guys. Yes, thank you. Thank you.